Hello students, good morning to all of you. I am your English teacher Rohit sir. Okay, today we are going to read English grammar and in English grammar we will read change of person. Okay, in our previous videos I taught you about direct and indirect speech. Okay. In direct and indirect speech, I have taught you about the main topics: reporting verb, reported speech. Okay, these are the markable points. After that, we will read the first change. Okay, the first change, that is called change of person. First change of person today we will read, and our the topic is here change of person. Change of person. Change of person. Our first topic is change of person. Okay. Before starting change of person, we have to need. Okay. We must need about person. In English, there are three persons. How many persons are there in English? There are three persons. First person, second person and third person. In every table of persons, okay, there is number and case. There are two numbers. How many numbers? There are two numbers. First is singular number and second is plural number. Singular number and plural number. And there is also case. There are three cases in English. How many cases? There are three cases. Okay, there are three cases. First, nominative case, second, possessive case, and third, objective case. How many cases? There are three cases. Nominative case, possessive case, and objective case. Okay, so we will read these three tables. What I am going to write on the board about change of person, and first I will write on the about persons. Okay, so just see, before change of person we will read about person. First person. First person. First person. Singular number. Singular and plural. Singular and plural. Okay. That is nominative case. Nominative case. Second is possessive case. Possessive case. And third is objective case. Objective case. Nominative case, possessive case, and objective case. This is the table of first person. Okay. So first person, singular number, nominative case is I. Plural we. Possessive case of I is my or mine. My or mine. Here will be our and ours. Objective case of I is me. Here will be us. Us. Okay. This is the table of first person. In every person there are two numbers. How many numbers? Two numbers. First singular number and plural number. And there are three cases. Nominative case is called subject. What is called? Subject.
Possessive case express relation, okay, and objective case called is object. What is called object? Objective case called object. So this is the first person. First person singular number, nominative case I. Okay. Possessive case of I is mine or mine. Objective case of I is me. Just like we have to remember this table. Second, plural number. Plural number we. Nominative case plural number first person we. Possessive case of we is our and ours. And objective case of we is us. Students, just look this. Okay, and try to remember. First, this table is very important. I'll explain in Hindi. Change of person. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हम लोगों को पर्सन की जानकारी अवश्य रूप से होनी चाहिए. पर्सन की पूर्ण जानकारी के बगैर नरेशन में जो हम लोग पर्सन को चेंज नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपको पर्सन के बारे में जानकारी होनी चाहिए. अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है. फर्स्ट पर्सन हमारा सिंगुलर नंबर, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई का पॉजिटिव केस होगा माई और माइन, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी. उसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, नॉमिनेटिव केस वी का पॉजिटिव केस आवर और आवर्स, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस. इस तरह से हमें याद करना है. ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन. ओके. नाउ आई स्टार्ट सेकंड पर्सन. लो, singular, there will be second person. Second person. You. Your. Yours. Yours. You. Okay, this is second person. Second person singular number, nominative case is you. Plural number you also singular number and plural number both. second person के टेबल में हमारा सिंगुलर नंबर, नॉमिनेटिव केस यू और प्लूरल भी यू ही होता है. यू का पॉजिटिव केस योर और योर, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है. ऑब्जेक्टिव केस भी आपका सेकंड पर्सन में यू और यू ही होगा. इस तरह हम देखेंगे कि यू जो है हमारा नॉमिनेटिव केस भी है. कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी है. यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दोनों है. तो ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया. ओके. नाउ वी विल राइट थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन he, she, it, they, he, his, her, hers, its. Their, theirs. Him, her, it. Them. Okay, this is our third person. Table of third person. See, singular number, nominative case he, she, it. Possessive case of he is his. Objective case him. Possessive case of she is her and hers. He
him. Okay. She, her and hers. She third person. Possessive के सब she is her और hers. Objective case is also her. It, its, and other objective case its. Third person, plural number. Nominative case they. Okay. Possessive case their and theirs. Objective case them. So this is our third person. You have to remember these three tables of person very well. Okay. Only then you will be able to change from direct to indirect about person. Change of person. So third person हमारा देखिए, थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर नंबर में नॉमिनेटिव केस ही का पॉजिटिव केस होता है his और ऑब्जेक्टिव केस है him. उसी तरह सी का पॉजिटिव केस होगा her और इसका ऑब्जेक्टिव केस her. ठीक है. हर जो है दो केस है, ध्यान देंगे यहाँ पर. हर जो है हमारा पॉजिटिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है. ओके. हर्ष भी हमारा पॉजिटिव केस होता है. हर और हर्ष दो पॉजिटिव केस है. इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका पॉजिटिव केस इट्स हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव इट हो जाएगा. ओके. अब हम लोग चलते हैं प्लूरल नंबर में. थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर नॉमिनेटिव केस क्या होगा? दे का पॉजिटिव केस देयर और देयर्स. पॉजिटिव केस देयर और देयर्स होगा. इसका आपको जो है ऑब्जेक्टिव केस देम होता है. ओके. ये हमारा हो गया पर्सन का टेबल. ओके. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस पर्सन को बदलते कैसे हैं हम लोग. लुक, चेंज ऑफ पर्सन. First person is changed according to the subject. According to the subject of reporting verb. According to the subject of reporting verb. Okay. Second person. Second person is changed. Second person is changed according to the object. According to the object of reporting verb. Third person is not changed. थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज. थर्ड पर्सन हमारा नहीं बदलता है. फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, नहीं चेंज होता है. ओके. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. अब हम लोग जो है इस तीनों रूल को एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कैसे हम लोग चेंज करते हैं. ठीक. देखिए, Tom says to me. Tom says to me. Tom says to me, I
Tom says to me, I am your neighbor. Tom says to me, I am your neighbor. Look, this is our first example. Okay, so before changing from direct to indirect, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट वी हैव टू इंश्योर दैट वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आप ये डिटरमाइन कर लीजिए कि दिया गया क्वेश्चन डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में है। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में इस बात की बारे में जानकारी दी थी कि कैसे हम लोग जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हम लोग अंतर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया गया सेंटेंस में कॉमा का यूज है या नहीं है। ओके, देखिए तो जरा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सो अ सेंटेंस हैविंग इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इससे ये साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि हमारा डायरेक्ट स्पीच है। कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट। बदले किसमें, बदलना किसमें है? इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट में। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इसमें सेकंड पॉइंट, स्टेप्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस स्टेप्स को फॉलो करना है और देखना है। सेकंड स्टेप हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेज, इसके बारे में जानेंगे। सेज क्या हो जाएगा हमारा? ये सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा वर्ब है? ये सेज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ओके, और नेक्स्ट ये सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, इस सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। दिस टू पॉइंट्स आर वेरी मार्केबल। ये दोनों जो है आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के पर जो है हमारा सब रूल काम करेगा। तो अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे सो देखिए। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन कौन सा बदलता है? पर्सन वही बदलेगा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। बाहर वाला पर्सन को हम लोग नहीं चेंज करते हैं। बाहर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा का पर्सन रहेगा उसको नहीं बदलेंगे, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पर्सन रहेगा उसी को बदलेंगे। आइए हम लोग बदलते हैं। सबसे पहले देखिए, टॉम सेज। सेज को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सेज को हम लोग बदल देते हैं टेल्स में। क्या बदलते हैं? इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। मी क्या है यहाँ पर? सेज के बाद मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रहता है तो सेज को टेल्स में बदल दिया जाता है। किसे बदलते हैं? टेल्स में। तो आइए इसे बदल दिया जाए। टॉम टेल्स। इसके बाद टू को नहीं लिखना है, टू को यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता है। जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे सेम टू सेम लिख देते हैं हम लोग। जो ऑब्जेक्ट बच जाता है, ऑब्जेक्ट क्या बच गया? मी ऑब्जेक्ट हमारा बच गया। तो टॉम टेल्स मी, कोई दिक्कत? इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 क्या था? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाएंगे। क्यों दैट लगाएंगे? तो चूंकि सेंटेंस जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाला वाक्य देखिए, आई एम योर नेबर। किस तरह का वाक्य? असर्टिव सेंटेंस। तो जब असर्टिव सेंटेंस रहता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। देखिए, टॉम टेल्स मी दैट। इतना तक समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। टॉम टेल्स मी दैट, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाले सेंटेंस की। यानी इस सेंटेंस में हम लोग क्या चेंज करना है? पर्सन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? पर्सन। जो पर्सन आया हुआ है जिसकी हम बात करते हैं। आइए हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। क्या है? आई। आई, अब देखिएगा इसमें अभी आपको जरूरत है उस पर्सन की टेबल को याद करने की। आई जो है फर्स्ट पर्सन है। हम लोग क्या देखेंगे? पर्सन देखेंगे, नंबर देखेंगे, केस देखेंगे। ओके, तो आई हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। नंबर की बात करते हैं तो सिंगुलर नंबर, और केस हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। क्लियर? While changing person, number and case is
नॉट चेंज्ड। पर्सन को बदलते समय केवल पर्सन ही बदलता है, उसका ना तो आपको नंबर बदलेगा ना ही केस बदलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन हम लिखेंगे वो जो भी हम नंबर लिखेंगे वो सिंगुलर नंबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाला क्वेश्चन में आई का नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है। इसका केस हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ भी जो केस आएगा वो भी नॉमिनेटिव केस ही रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ केस नहीं बदलता है। ओके, सो लुक, आई इज फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस। एनी डाउट? नो डाउट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? आपको मैं यहाँ पर छोटा सा टेबल लिख देता हूँ, आप रफ में इसको कहीं लिख के समझ सकते हैं। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको इस टेबल को बताया हुआ था। 123 बटा सन, 123 बटा सन। ये जो मैंने 1 2 3 जो 3 पर्सन के बारे में लिखा था, आप इसको शॉर्ट किस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट stands for first person, second person, third person. S stands for subject, O means object, and मतलब no change. Okay? इसका मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलेगा। आइए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? से रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? टॉम है। सब्जेक्ट क्या है? टॉम। अब यह टॉम है, ये नाउन है, तो नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज करना है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस क्या होता है? इसके लिए अगर आपको टेबल याद है तो तुरंत आप लिख दीजिए, अगर नहीं याद है तो पलट के देखना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम को बदलने में। इसलिए टेबल याद कीजिए, किसका? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तीनों का। और उसमें नंबर ऑफ केस भी याद करना पड़ेगा आपको। आई जो है फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट टॉम के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे लिख देंगे ही। क्या हो जाएगा? ही। अब दोनों पर ध्यान देंगे। इसका नंबर देखिए सिंगुलर नंबर है, ही का भी नंबर सिंगुलर है। क्लियर? इसका जो है देखिए केस नॉमिनेटिव है, ही का भी केस नॉमिनेटिव। इट मींस नंबर एंड केस बोथ आर सेम, इट नेवर चेंज। नेक्स्ट देखिएगा, आई के अकॉर्डिंग एम आया हुआ है, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज, ही इज। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग योर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं योर की। अगर आपको टेबल याद है तो याद करके तुरंत बताइए योर कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है और कौन सा केस है। योर हमारा होता है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। कौन सा केस? बोलिए। योर जो है हमारा होगा पॉजेसिव केस। कौन सा केस? पॉजेसिव केस। और यह हो जाएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा जो है योर है, ये ऑब्जेक्ट ये है, मी है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं योर पॉजेसिव केस की। मी का पॉजेसिव केस क्या होगा? तो मी का पॉजेसिव केस यहाँ पे आपको टेबल याद करने का सकता। अगर आपको टेबल अच्छी तरह से याद है तो आप तुरंत बोलिए और लिखिए। यहाँ पर मी का पॉजेसिव केस होता है माई। क्या होता है? माई और माई। बट यहाँ पे माई का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई। ही इज माई। नेक्स्ट लास्ट क्या बच गया? नेबर। नेबर हो गया हमारा थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? नेबर यानी पड़ोसी। पड़ोसी का कुछ नाम होगा और नाम हम जानते हैं कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। सो नेबर विल बी रिटन हियर एज यूजुअल। ओके, सो दिस एग्जांपल इज क्लियर। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल फील नो डाउट। स्टिल यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट देयर एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, दिस मच ओनली फॉर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग केवल चेंज ऑफ पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चेंज ऑफ टेंस की बात करेंगे और भी नेक्स्ट हम लोग इस तरह से वीडियो में बात करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल फील नो प्रॉब्लम। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।